Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope all are well. So before I start the lecture, I request you to all please like, share and subscribe my channel so that you do not miss the notification of the lecture. Okay. So today we are going to solving numerical problem based on classification of flow profile. Okay. Classification of flow profile. Before that, I want to define what is control section. What is control section? Control section is that section where there is definite relation between discharge and flow depth. Where there is definite relation between discharge and flow depth. For given discharge, for given discharge, depth of flow is known. For given discharge, depth of flow is known. Okay. Control section is found where there is change in bed slope and geometry of the channel. Okay. Where there is change in geometry of the channel and bed slope. Okay. Where we can found the control section. Okay. If flow is subcritical, control section is at downstream. If flow is supercritical, control section is at upstream. If flow changes from subcritical to supercritical, if flow changes from subcritical to supercritical, subcritical to supercritical, if flow changes from subcritical to supercritical, control section lies at CDL. CDL means CDL, critical depth level. Okay. If flow changes from supercritical to subcritical, control section, there will be a jump. There will be a jump. If flow changes from supercritical to subcritical, there will be a jump. Okay. So now we are going to discuss very important 3 points which are very important to solving numerical problem based on classification of flow profile. Classification of flow profile. 3 points. First point is NDL, normal depth level, or YN is inversely proportional to bed slope. Is inversely proportional to bed slope. That is very important. This is very important for solving profile. YN is inversely proportional to bed slope of the channel. Okay. First relation. Second one is YC, critical depth level, does not depends on bed slope. Bed slope. YC does the critical depth does not depend on bed slope. Okay. We know that for rectangular channel, YC equal to small q square by g q whole power 1 by 3. YC only depend on discharge carrying capacity. Discharge carrying capacity. This is discharge per unit width. Q equal to discharge per unit width. Okay. If Q is increased, so YC will be increased. It means that if discharge carrying capacity is changed, so YC will be changed. Otherwise, YC will remain constant because YC does not depend on bed slope of this channel. Okay. YC equal to Q square by G, Q whole power 1 by 3. Now third point is that flow changes. Flow changes. Flow always starts from NDL means normal depth level. Flow always starts from NDL to meet at
meet at NDL. Okay, flow always start from NDL to meet at NDL. These 3 points are very very important, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे किस पे, फ्लो प्रोफाइल पे. ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब हम एग्जांपल करेंगे, आपको ध्यान देना है बस आपको. और हाँ, अगर आपने इससे प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज करके उस लेक्चर को देखिएगा. उसके बाद अगर आपने वो लेक्चर देखा, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्लो प्रोफाइल से रिलेटेड न्यूमेरिकल पे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. माइल्ड टू माइल्डर, माइल्ड टू माइल्डर. ओके, माइल्ड टू माइल्डर. माइल्ड टू माइल्डर. अब अगर स्लोप माइल्ड टू माइल्डर, माइल्ड मीन्स हल्का, मीन्स हल्का क्या, स्लोप, हल्का स्लोप. माइल्डर मीन्स और हल्का स्लोप. ये आपको ध्यान देना है. जैसे मैं बताता हूं, माइल्ड मीन्स बट इन अ माइल्ड स्लोप. Always remember that yn is greater than yc. Okay, yn is greater than yc. It means that flow is subcritical. Subcritical flow. It means that Froude number is smaller than 1. Froude number is smaller than 1. ये बात आपको ध्यान देनी है. Mild to milder means let's take mild slope. This is mild. Okay, mild. In mild slope, yn is greater than yc. It means that normal depth level is greater than critical depth level. Okay, NDL. अब यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड स्लोप है. अब माइल्डर मीन्स इससे भी कम होगी स्लोप. अब स्लोप थोड़ी कम होगी, स्लोप इस तरह से हो गई. बट आप जानते हैं कि जो CDL है हमेशा इसमें कांस्टेंट रहता है जब तक कि डिस्चार्ज चेंज नहीं हुआ. सो CDL विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज डिस्चार्ज डज नॉट चेंज. Discharge is constant in gradually varied flow. Okay, YC only depends on geometry of Q square by G. Q square by G, because we know that YC equal to what, Q square by G Q whole power 1 by 3, because we know that Q equal to small q equal to capital Q by discharge carrying capacity by width. Okay, now this is CDL, 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 CDL. Okay, so NDL. Now NDL आपको अब ध्यान देना है. इसके बाद आपको ध्यान देना है जहां गलतियां हो सकती हैं. एक बात बताओ, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था. I have explained expression. I have discussed an expression. Yn is inversely proportional to bed slope. अब आप बताओ, जब मैं यहां से यहां आया ये तो माइल्ड था, that is milder. Okay, milder. Milder means स्लोप कम. जब स्लोप कम हो गई तो आप खुद बताओ जरा, आप खुद बताओ, जब स्लोप कम होगी तो y को तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, y को इंक्रीज करना पड़ेगा. जब स्लोप कम होगी तो y कितना इंक्रीज होगा, कहीं देख लेते, कहीं इधर चला गया, इतना. ये हो गया NDL. अब एक बात बताओ, जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया था कि फ्लो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम NDL टू मीट एट NDL, तो NDL से NDL जाएगा. और आपको शायद मैंने एक बात और भी बताई थी, की पॉइंट, वो मैं अभी बता रहा हूं. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज करके उस लेक्चर को देखिएगा. मैंने क्या बोला था, जोन 1 में अगर कोई भी प्रोफाइल राइज करेगी, फॉल करेगी, हमेशा क्या करेगी, जोन 1 में प्रोफाइल क्या करेगी, राइज करेगी. जोन 1 में प्रोफाइल क्या करेगी, राइज करेगी. और जोन 3 में प्रोफाइल क्या करेगी, फॉल करेगी. जोन 3 में, सॉरी, जो जोन फर्स्ट एंड थर्ड है उसमें प्रोफाइल क्या करेगी, राइज. जोन फर्स्ट एंड थर्ड, जोन मतलब इस, अगर मैं इससे इधर देखता हूं, जोन फर्स्ट एंड थर्ड में प्रोफाइल हमेशा राइज करेगी, जोन सेकंड में प्रोफाइल हमेशा फॉल करेगी. ओके, तो आप बात आपको ध्यान देनी. अगर कोई भी प्रोफाइल राइज कर रही है, फॉल कर रही है, किससे, NDL से, तो वहां पे स्लोप कितनी होगी, 0 डिग्री. 0 डिग्री होगी स्लोप. अगर कोई भी
प्रोफाइल आपकी सीडीएल पे मिल रही या सीडीएल से निकल रही है कोई प्रोफाइल, तो उसके इसमें जो एंगल बनेगा मतलब स्लोप बनेगी वो कितनी बनेगी 90 डिग्री। ये आपको ध्यान देना है। अब आपको यहां से यहां में आना है। जब आपको यहां से यहां पे आना है, हमने क्या बोला था कि एनडीएल से एनडीएल जाना है, एनडीएल से एनडीएल, तो आपने यहां जाना है, तो कैसे जाओगे आप बोलेंगे सर यार ऐसे कर दो ना, ऐसे, ये भी तो सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी तक एक पॉइंट बताया था आपको कि जब कोई भी प्रोफाइल एनडीएल पे राइज करेगी तो वहां पे एंगल कितना बनेगा, स्लोप कितनी 0 डिग्री, 0 डिग्री दिख रही है नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ स्लोप है, यानी कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट करेक्ट। तो आप बताएंगे सर फिर ऐसे करो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, स्लोप बन रही है, वो कितनी है 0 डिग्री और ऊपर भी 0 डिग्री, तो यही प्रोफाइल है। अब आप खुद बताओ, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये प्रोफाइल कैसे लग रही है आप, तो आप बताएंगे सर ये होता है हमारे पास जोन कौन सा M1, ये होता है M2, ये होता है M3, और ये जोन क्या होता है हमारे पास, ये M1, ये M2, ये M3। तो आप खुद बताओ ये कौन सी प्रोफाइल लग रही है आपको इस तरह से, तो आप बताएंगे सर ये प्रोफाइल लग रही है कहां से जा रही है M1 से, मतलब राइजिंग प्रोफाइल, यानी कौन सी प्रोफाइल है M1, ये है M1 प्रोफाइल है, ये इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ये M1 प्रोफाइल है, आंसर विल बी M1 प्रोफाइल। ओके, तो ये आपको ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी, दो क्वेश्चन करते हैं फिर इस सेशन को एंड करते हैं। कुछ नहीं आपको, बस जो मैंने 3 पॉइंट बता दिए और एक मतलब 2-3 पॉइंट प्रीवियस लेक्चर अगर आपने सही से देखा तो आपको इन पॉइंटों की जरूरत नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टीप टू स्टीपर, स्टीप टू स्टीपर, स्टीप टू स्टीपर, स्टीप का मतलब क्या होता है, मतलब माइल्ड से ज्यादा स्लो। स्टीप देखो जरा, स्टीप के केस में आपको ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, वाइस एन इज स्मॉलर देन वाई सी, जब वाई एन स्मॉलर देन वाई सी है तो आप बता देंगे कि जब ये इस केस में बेड स्लोप तो बड़ी होगी किससे, एस सी से। इस केस में आप बताएंगे कौन सा फ्लो होगा, कम है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा तो क्या है आपका फ्रॉड नंबर क्या होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1, ये आपको ध्यान देना है। अब है स्टीपर टू स्टीपर, ओके, तो बना देते हैं एक स्लोप, इस साइड बना लेता हूं, ये है। अब स्टीपर मतलब और स्टीप है, ये हो गया, सबसे पहले लिख देते हैं कौन सी, स्टीप, और ये स्टीपर मतलब स्लोप ज्यादा आगे। तो आप खुद बताइएगा इस केस में, अगर मैं इस केस का मतलब डायग्राम ड्रॉ करूं, इसमें सबसे पहले क्या आता है आप बताइए सर, सबसे पहले सीडीएल तो सबसे ऊपर आता है इस केस में क्योंकि सीडीएल की लाइन बड़ी रहती है, ये सीडीएल आपका सी डी एल, और दूसरा आपके पास एनडीएल, एनडीएल, ओके। तो आप बताओ स्टिप से स्टिप, अब क्या होगा कि आप बताओ कि सीडीएल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक डिस्चार्ज चेंज नहीं हुआ, मतलब सीडीएल तो कभी चेंज नहीं होगा, तो सीडीएल तो आएगा ऐसे अपने रास्ते आ जाएगा इस तरह से सीडीएल। अब बात आई एनडीएल, अब आप खुद बताओ, स्टीप स्लोप थी, अब स्लोप ज्यादा बढ़ गई है, तो वाई एन इक्वल टू हम क्या जानते हैं, वाई एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट, मींस दैट ये बढ़ गया, जब स्लोप बढ़ गई तो किसको कम होना पड़ेगा, किसको वाई एन को, जब वाई एन को कम होना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या है, माना कि कम कितना हुआ है, इतना कम हो गया, तो ये हो गया एनडीएल, एनडीएल हो गया। तो एनडीएल आप बताओ, अगर मैं इस यहां से यहां किस तरह से आ सकता हूं, मैं एनडीएल टू एनडीएल जाना है, ये बात भी आपको ध्यान देनी है, आपको जाना है एनडीएल टू एनडीएल, तो आप कैसे जाओगे, एनडीएल टू एनडीएल जाना है आपने, तो आप बताएंगे सर यहाँ पे थीटा 0 डिग्री और मतलब बनना चाहिए और जहां मिलना है वहां भी 0, तो आपको इस तरह से जाना पड़ेगा, इस तरह से देखो, यहाँ पे एनडीएल से मिली तो थीटा कितना है 0, और यहाँ पे किससे मिली है एनडीएल से, यहाँ पे थीटा 0 है, तो आप खुद बता दो जरा ये प्रोफाइल आपको कैसी लग रही है, फॉलिंग प्रोफाइल है, और फॉल किस जोन में करता है आप बता दो यार, फॉलिंग तो दूसरे जोन में करता है, सेकंड जोन में, तो ये कौन सी प्रोफाइल है S2, S2 प्रोफाइल है। तो इस तरह से है, बहुत ज्यादा आसान है, मतलब 5 सेकंड भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं लगेगा, बस आपको ये ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, ये फॉलिंग प्रोफाइल थी, और फॉल किस में करता है जोन 2 में, जोन 2 में करता है, S2 प्रोफाइल हो गई है। अब लास्ट 2 एग्जाम्पल रहेंगे इसके बाद।
माइल्ड टू स्टीप। अब है माइल्ड टू स्टीप, माइल्ड टू स्टीप, स्टीप। अब माइल्ड टू स्टीप देखते हैं। माइल्ड टू स्टीप के केस में क्या आएगा, आप खुद बताओ जरा। एक माइल्ड बना लेते स्लोप, माइल्ड स्लोप बनाते कोई भी, ये बना दी माइल्ड स्लोप, ये आपकी माइल्ड। ओके, अब स्टीप मतलब स्लोप ज्यादा हो जाएगी, ये हो गया स्टीप। ओके, स्टीप, दैट इज स्टीप। सो दिस इज माइल्ड, दिस इज स्टीप। माइल्ड के केस में क्या होता है, आप बताइए वाई एन इज ग्रेटर देन वाई सी। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये सी डी एल है, ये है आपका एन डी एल, एन डी एल। तो इस, लेकिन इस केस में उल्टा होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, सीडीएल तो बड़ा होता है, सीडीएल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सीडीएल तो हमेशा ऐसे कांस्टेंट रहेगा, ये तो ऐसे ही जाएगा। अब लेकिन आप खुद बताइएगा, ये माइल्ड था, अब स्लोप ज्यादा हो गई, तो आपको पता है कि वाई एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट। मतलब अभी क्या हो गया, मतलब स्लोप हमारे पास ज्यादा होगी, जब स्लोप ज्यादा होगी तो इसको कम होना पड़ेगा, जब ये कम होगा, अब कम कितना होगा आप बताएंगे। कहीं अगर यहाँ पे क्या है, कंट्रोल सेक्शन है, तो इधर कहीं भी यहाँ पे देख लेते, इस तरह से होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो भी प्रोफाइल कहाँ से कहाँ मीट करती है, तो आप बताएंगे सर आपने अभी तक बताया था एनडीएल टू एनडीएल, तो एनडीएल टू एनडीएल मिला दो प्रोफाइल को। और हाँ, दूसरी कंडीशन ये आपको ध्यान रखनी है कि एनडीएल पे से एनडीएल मिलेगी, तो एनडीएल पे क्या स्लोप कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री। तो मैंने कहा, सॉरी ये तो सीडीएल है, सीडीएल, और दिस इज एनडीएल। अब बनाओ, कैसे बनाओगे, अब आप बोलेंगे सर ऐसे कर दो ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। क्या ये कौन सी प्रोफाइल होगी, ये फॉल। अब आपको आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये कौन सी प्रोफाइल होती है, M1, ये होती है M2, और ये होती है M3। ओके, अब ये हो गया आपका S1, ये S2 एंड S3। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये कौन सी प्रोफाइल, ये फॉल कर रही है, आप थोड़ा इससे ऊपर तक देखो पहले, ये फॉल कर रही है या राइज कर रही है इसके रिस्पेक्ट में, तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री तो स्लोप है, बिल्कुल सही है। और क्या कर रही है, फॉल कर रही है, तो क्या कर रही है, फॉल कर रही है, तो क्या आएगा, M2 तो आएगा, आएगा M2। और एनडीएल टू एनडीएल मिल गई। अब यहाँ पे जो प्रोफाइल ये मिल रही है, यहाँ पे ये भी तो फॉल कर रही है, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में ये फॉल कर रही है, जब ये फॉल करे तो क्या, S2, M2 S2 विल द आंसर ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन। ये देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना, आपको दो चीजें याद रखनी है, जोन 1 एंड जोन 3 में क्या करता है, राइज, और जोन 2 में क्या करता है, फॉल करता है। और कैसे पता करेंगे राइज फॉल किस जोन में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से ले लूंगा थोड़ा मैं, जो कि गेट में भी आ रखा है, 2 मार्क्स का, गेट आईएएस में। माइल्ड स्टीपर स्टीप, माइल्ड स्टीपर स्टीप, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप खुद करिएगा, अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा किसी तरह से। आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है और जो आज मैंने की पॉइंट बताया है वो देख ले, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं, माइल्ड स्टीपर टू स्टीप, माइल्ड का देखो, माइल्ड का कैसे बनाते हैं हम जल्दी, माइल्ड है तो ऐसे है, और स्टीपर का मतलब और थोड़ा स्टीप है, ये बना दिया डायग्राम। ये क्या था, ये है माइल्ड। ओके, ये आपको पास स्टीपर और ये स्टीप। अब क्या करना है, आपको पता है माइल्ड के केस में क्या होता है, एनडीएल ऊपर रहता है, ठीक है, एनडीएल सीडीएल है ये, दिस इज एनडीएल, एनडीएल। तो क्या करना है, ये कंट्रोल सेक्शन यहाँ पे, जब ये कंट्रोल सेक्शन है, अब इस केस में स्टीपर का मतलब स्लोप क्या है, ज्यादा है। हम जानते बार बार यही बता रहा हूं मैं कि एस नोड जब स्लोप ज्यादा है तो एनडीएल कितना होगा, कम होगा। एनडीएल भले नीचे लाई करता है, लेकिन सीडीएल तो कभी भी, सीडीएल तो बोलेगा कि ना मैं तो हमेशा एक जगह रहूंगा, ये रहा CDL, CDL, CDL। ओके, तो आपको क्या करना है, CDL आ गया। अब मेरी बात सुनिएगा आप, अभी क्या है, स्लोप क्या है यहाँ पे, ज्यादा, ज्यादा है स्लोप, क्या है तो YN को कम होना पड़ेगा, ये हो गया NDL, दिस इज NDL, NDL। ओके, अब जब थोड़ी सी स्लोप कम होगी, जब स्लोप कम होगी तो YN बढ़ गया, तब जब YN बढ़ गया तो YN कहीं ना कहीं इधर इधर लाई कर रहा होगा, YN NDL। तो आप खुद बताओ जरा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखो हमने एनडीएल टू एनडीएल जाना है, एनडीएल टू एनडीएल जाना है,
तो आप कैसे जा सकते हैं यहाँ पे, एनडीएल टू एनडीएल जाना है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। एनडीएल टू एनडीएल जाना है तो कैसे जाएंगे हम, एनडीएल टू एनडीएल, देखो ये भी एनडीएल है, ये भी एनडीएल है, तो आप बताओ हम कैसे जाएंगे। तो आप बताएंगे सर यहाँ से चाहे आप ऐसे आ जाओ और यहाँ से ऐसे आ गया एनडीएल टू एनडीएल। ये स्लोप यहाँ पे 0 डिग्री बन गया और यहाँ पे क्या बनेगा, स्लोप 0 डिग्री बन गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको M1, ये M2 है, ये M3 है, और ये हो गया S1 S2 S3 हो गया। अब यहाँ से यहाँ आ गया, अब मैंने यहाँ से एनडीएल पे ही जाना है, ये मतलब यहाँ से एनडीएल, तो आप बोलेंगे सर एनडीएल पे ऐसे जाओ। मैं रेड से बना देता हूँ थोड़ा ताकि कि आपको समझ में आ जाए। ये आ गया 0 डिग्री से, ये यहाँ से तो एनडीएल इस तरह से जा सकते। तो आप बताओ ये कौन सी, ये फॉलिंग है राइजिंग प्रोफाइल, तो आप बताएंगे सर सबको पता है कि ये फॉलिंग है तो M, और ये क्या है, ये भी फॉलिंग है, ये भी S2 बनेगी। जब ये फॉलिंग है, अब आप खुद बताओ यहाँ से जो ये वाली प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल क्या कर रही है, राइज, और राइज कहाँ करती है, आप खुद बताओ जरा, ये कहाँ से किस जोन में जा रही है, ये कौन सा जोन है। आपको अगर मैं बताऊं कि ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, मतलब S3 में ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जब इंक्रीज कहाँ कहाँ करती है, जोन 1 एंड जोन 3, ये हो गया S3। तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मतलब सारी चीज। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि राइज कर रही है, जोन 1 जोन 3 में क्या करती है, राइज करती है प्रोफाइल। बस आपको ये ध्यान देना है। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिए सारे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आ सकते हैं। देखो एक होता है प्रोफाइल फॉलोड बाई, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल फॉलोड बाय हाइड्रोलिक जंप, ओके, हाइड्रोलिक जंप। तो कौन सी होगी, हाइड्रोलिक जंप। तो आप बोलेंगे कौन सी होती, रुक जाइए 1 मिनट, इसको मैं अलग से बता देता हूँ और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। प्रोफाइल फॉलोड बाय हाइड्रोलिज्म, मार्कर मीन्स इंक भी शायद खत्म होगी। प्रोफाइल फॉलोड बाय हाइड्रोलिज्म, प्रोफाइल फॉलोड बाय, ये एग्जाम में आ सकते हैं, हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप। वो प्रोफाइल फॉलोड बाय हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, M3 जो फॉलोड करती है H3 A3 प्रोफाइल। अब प्रोफाइल प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिक जंप S1, ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर कोई भी किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, फिर मैं इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल का एक सेशन ले आऊंगा। और इसमें प्रोफाइल में आपको कुछ नहीं करना है, जितना मैंने बताया है वो एक तरह से रामबाण है। तो आज मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर मेरे चैनल पर कोई भी एस्पिरेंट पहली बार मतलब विजिट हो रहा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह के लेक्चर आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।